Hello children, how are you? I hope all of you are keeping fine and you are also concentrating on your studies. So this is our second chapter of English literature. This story is titled The Turning Point. It's about our Honorable ex-President Dr. APJ Abdul Kalam and how his teacher Sri Shiva Subramania Iyer played a pivotal role in shaping his life, how he inspired his life, how he became an inspiration of him, so that in future he took physics as his subject. He studied physics and then he took up aeronautical engineering and he became an aerospace scientist. He was a great author and he served as the 11th President of India from 2002 to 2007. He won several awards such as Bharat Ratna, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Hoover Medal, Ramanujan Award and etc. and many such awards. He will always be remembered as an Indian scientist and politician who played a leading role in the development of India's missile and nuclear weapons programs. In this story, through this story he wants to tell us that how a teacher can play a pivotal role in shaping his students' lives. Okay, means how a teacher can act as a motivational person in his student's life. Sometimes an event may bring about an important change in the life of a person, a group or a country. Such an event acts as a turning point. Turning point means जो लाइफ को एकदम से चेंज कर दे, एकदम से लाइफ में एकदम से एक, इसे कह सकते हो कि बहुत अच्छे के लिए चेंज आ जाए या बहुत बुरे के लिए भी. ठीक है, तो कैसे एपीजे अब्दुल कलाम की ज़िंदगी में ये चेंज आया और किसने लाया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. आई रिमेंबर माई टीचर श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर who taught me in class 5. It was he who sowed the seeds of a vision in my life. He was a very good teacher and all of us loved to attend his class. Now in the first paragraph he says, Dr. APJ Abdul Kalam says that he remembers his teacher Sri Shiva Subramania Iyer. His teacher Sri Shiva Subramania Iyer, he did not forget in his whole life. He could not forget because in his novel this The Turning Point, he mentions his name, and also in his another novel Wings of Fire he also mentions his name. Means he is so inspired by his teacher that he never forgets him. ऐसा होता है जो टीचर हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जो हमें बहुत पसंद होते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो हमें आगे के लिए मोटिवेट करते हैं और जिनसे पढ़ के हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है कि हम उस सब्जेक्ट को ही अपना फ्यूचर सब्जेक्ट बना के आगे अपना फर्दर स्टडीज़ उसी सब्जेक्ट में परस्यू करते हैं, उसी सब्जेक्ट में अपना करियर बनाने की सोचते हैं. वो उस टीचर की वजह से होता है जिन्होंने हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट हमें उत्पन्न किया है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए. तो ऐसे टीचर को हम कभी नहीं भूल पाते. वी नेवर फॉरगेट दैट पर्टिकुलर teacher. We always have an awe and admiration for that particular teacher. So
during this time he says that he was in class 5, in standard 5, and Sri Siva Subramania Iyer was his science teacher. It was he who sowed the seeds of a vision in my life. Sowed the seeds of a vision in my life यानी ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखने की, क्योंकि जो टीचर जो सिर्फ किताबी लेसन या बुकिश लेसन या बुकिश टॉपिक के बारे में ना बताए, उससे हट के भी कुछ बताएं और उससे हट के प्रैक्टिकली कुछ बताएं, ऐसे ही टीचर थे श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर, जो कि बच्चों को पढ़ाते थे। तो ना सिर्फ थियोरेटिकली, ही नॉट ओनली taught theoretically but also gave practical examples, so all the students could visualize whatever is being taught, okay, because he always gave practical examples. He sowed the seeds of a vision in my life. उन्होंने ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखने की शक्ति दी. He was a very good teacher and all of us love to attend his class. ठीक है, तो वो बहुत अच्छे टीचर थे और उनका क्लास अटेंड करना सबको बहुत ही अच्छा लगता था. One day he was teaching us about a bird's flight. He drew a diagram of a bird in flight and explained how it creates lift. He also explained how it changes direction while flying. For 25 minutes he lectured us on things such as lift, drag, and how birds fly in formations of 10, 20 or 30. So one day he was teaching about how a bird flies, okay, and what he did, he drew a diagram on the blackboard showing a bird flying, okay, and then he explained to all his students how it creates lift, how does it lift itself, and how it changes direction while flying. And his lecture went on for 25 minutes, and during this process he lectured on how a bird generates lift, how it lifts itself, how it drags, and how birds fly in formations. It rarely flies alone, it always flies in groups, in formations of 10, 20 or 30. At the end of the class he wanted to know whether we had understood how a bird flies. I said I had not understood. When I said this, he asked whether the others had understood or not. Many students said that they too had not understood. Our teacher was really concerned about this, but he did not get upset by our response. Now when the class ended, when he completed his lecture, then he as usual like the other teachers asked whether his students have understood the lesson or not. He wanted to know whether his students had understood how a bird flies or not. Then many of the students did not reply at once, did not reply spontaneously, because they were scared of the teacher, that Sri Siva Subramania Iyer might get irritated or might scold them, or they also thought that if they will tell that they have not understood, if any one of them says so, the other will mock at them. सब उसका मजाक उड़ाएंगे. मतलब उन्होंने सोचा कि अगर कोई उनमें से एक कह दे कि मुझे नहीं समझ में आया, तो बाकी सारे क्लास के बच्चे मजाक उड़ाएंगे कि देखो इतना सिंपल सा चीज़ नहीं समझ में आया, या फिर कहीं टीचर ही इरिटेट ना हो जाए और टीचर ही ना कहे कि आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आई. लेकिन APJ अब्दुल अब्दुल कलाम बहुत ही फ्रैंक थे, बहुत ही बोल्ड थे, और उन्होंने वो कहा कि उन्हें समझ में नहीं आया. एंड व्हेन ही सेड दिस, व्हेन APJ अब्दुल कलाम सेड सो, Sri Siva Subramania Iyer wanted he asked other students whether they had understood or not. Then several
many students said that they had not understood. So unlike other teachers, he was really concerned about this, that he had not understood, because बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनको अपना लेसन कंप्लीट करने की ये रहती है, अपना सिलेबस कंप्लीट करने की जल्दी रहती है, नहीं समझे, अब किसी एक के लिए तो रुक नहीं सकते। पर श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर ऐसे टीचर नहीं थे। उनको लगा कि नहीं, अगर किसी एक भी बच्चे के समझ में अगर कोई टॉपिक नहीं आई है तो उनके टीचर होने का कोई मतलब नहीं है। सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तभी मैं आगे पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि आगे के लिए फिर अगर मैं अभी का टॉपिक नहीं समझाऊँगा बच्चों को, तो आगे अगर बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछेंगे भी नहीं। लेकिन वो अपसेट नहीं हुए, वो ज़रा सा भी इरिटेट नहीं हुए, ज़रा सा भी अपसेट नहीं हुए ये सुन के कि उनके बच्चों को नहीं समझ में आया। क्योंकि ऐसा हो ही सकता है कि कोई बात कोई अगर समझाए, जैसे टीचर समझाए, तो ये बात हो ही सकता है कि किसी एक बच्चे के शायद समझ में नहीं आए, तो वो अपसेट नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे उन्हें क्या करना है। He wanted us to understand the principles of flight. So he said he would take all of us to the seashore. This was an important topic for him. उनको लगा कि नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो प्रिंसिपल्स है फ्लाइट के, वो उनको समझ में आना ही चाहिए। और तब उन्होंने फ़ैसला किया और उन्होंने कहा बच्चों से कि वो हमें सीशोर ले जाना चाहते हैं, वो हमें समंदर किनारे ले जाना चाहते हैं। That evening the whole class was on the beach. He drew our attention to the seagulls flying in formation. There were about 20 of them. और उसी शाम को सारा क्लास बीच पे पहुंच गया। सब उन्होंने हमें कुछ सी गर्ल्स, कुछ समुद्री पक्षी समंदर के ऊपर आसमान में उड़ते हुए उन्होंने हमें दिखाया। देयर वर अबाउट 20 ऑफ देम, और वो लोग करीब 20 थे। इट वॉज अ मार्वेलस formation of birds with a purpose. It was a marvelous means beautiful. ये जो seagulls fly कर रहे थे, इनको देख के ये ग्रुप में जो फ्लाई कर रहे थे, और शाम का वक्त था, और ये सफ़ेद पंछी जब आसमान में फ्लाई कर रहे थे, तो उस नीले आसमान जब शाम होती है तो वो हल्का ग्रेइश आसमान ग्रेइश हो जाता है। तो उस ग्रेइश आसमान में ये जो वाइट पंछी फ्लाई कर रहे थे, तो ये आसमान बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। एंड वी वर ऑल amazed as we began to recall what we had heard that morning. The teacher then asked us to look at the bird's wings. और हम लोग सब लोग बहुत ही चकित हो गए, क्योंकि हम लोगों को याद आ गया कि हमें श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने सुबह क्या पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था उन्होंने पढ़ाया था कि दे रेयरली फ्लाई अलोन, दे ऑलवेज फ्लाई इन फॉर्मेशन ऑफ 10, 20 और 30। तो उन्हें ये लेसन का ये एक पार्ट उन्हें याद आ गया। The teacher then asked us to look at the bird's wings, how they flapped to generate lift. फिर उन्होंने हमारे टीचर ने हमें श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने हमें कहा कि बर्ड्स के विंग्स की तरफ देखो, ठीक है, उसके पंखों की तरफ देखो, और देखो कि वो कैसे अपने पंख फड़फड़ाते हैं ताकि वो उड़ सके आसमान में, टू जनरेट लिफ्ट, वो अपने आप को आसमान में ऊंचा उड़ा सके। He asked us to look at the tail and the combination of flapping wings and twisting tail. तो उन्होंने कहा कि ना सिर्फ विंग्स को देखो, बल्कि उसके टेल को भी देखो, बर्ड की पूंछ को भी देखो, और ये जो फ्लैपिंग, ये जो पंख फड़फड़ा रहे हैं, और ये टेल जो उनकी पूंछ है वो जो बार बार ट्विस्ट हो रहा है, उसे भी देखो।
We looked closely and found that the birds in that position could fly in the direction they wanted to. तो ये जो फ्लैपिंग विंग्स और ट्विस्टिंग टेल है, ये इनको फ्लैपिंग विंग्स उनको ये करता है, हेल्प करता है टू जनरेट लिफ्ट, और ट्विस्टिंग टेल उनको डायरेक्शंस चेंज करने में मदद करता है. Then he asked us a question, can you tell me where the bird's engine is and how it is powered? फिर उन्होंने हम सबसे अपने स्टूडेंट से एक सवाल पूछा. उन्होंने पूछा कि क्या आप बता सकते हो कि बर्ड का इंजन कहाँ है और ये कैसे पावर होता है, उस इंजन को पावर कैसे मिलता है. We knew the answer to that question. All the aspects of the principles of flight became clear to us within the next 15 minutes. हमें उसका आंसर पता था. हमें क्यों पता था? क्योंकि अब हमारे जितना भी लेसन था जो हमें थियोरेटिकली पढ़ाया गया था, जो एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि जो उन लोगों को थियोरेटिकली जो भी पढ़ाया गया था, जो बुक की माध्यम से, किताब के माध्यम से उन्हें पढ़ाया गया था, वो सारा कुछ उन्हें क्लियर हो गया उस 15 मिनट के लेसन में. उस 15 मिनट के लेसन जो कि सीशोर में उन्होंने प्रैक्टिकली उन्हें दिखाया था. We understood clearly the dynamics of a bird's flight with practical example in front of our eyes. अब जब उनके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्लेस किया गया तो उन्हें डायनामिक्स यानी लॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ बर्ड्स फ्लाइट पूरा समझ में आ गया. आवर टीचर वॉज द ग्रेटेस्ट. अब हमें लगने लगा कि हमारे टीचर, अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और बाकी स्टूडेंट्स को लगने लगा कि उनके टीचर कितने महान हैं. ही हैड गिवन अस अ लेसन इन थ्योरी एज वेल एज इन प्रैक्टिस, जो कि उनके ड्यूटी का पार्ट नहीं था, तभी भी उन्होंने ये ड्यूटी की. उनका ड्यूटी सिर्फ उनके स्कूल तक था. उनको स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाना था और बच्चों को समझाना था. उसके बाद की उनकी ड्यूटी नहीं थी. लेकिन उन्होंने शाम का वक्त भी बच्चों को दिया और पर्सनली उनको स्कूल के बाहर सीशोर पे ले गए और उनको प्रैक्टिकली वो चीज़ समझाया, क्योंकि थियोरेटिकली उन्हें समझ में नहीं आया था. दिस इज़ रियल टीचिंग एंड लर्निंग. और तब उन्हें समझ में आया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कि हाँ, इसे कहते हैं रियल टीचिंग और रियल लर्निंग. आई थॉट टू माई सेल्फ, for me this incident was not merely an understanding of how a bird flies. That evening on the seashore of Rameshwaram, I decided that I wanted to study all I could about the concept of flight. और ये सिर्फ एक इंसिडेंस नहीं था कि एक पक्षी कैसे उड़ता है, बल्कि उस दिन उसी रामेश्वरम के सीशोर पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रण लिया कि मुझे कंसेप्ट ऑफ फ्लाइट के बारे में सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ जानना है, क्योंकि वो एक छोटा सा टॉपिक उनके अंदर उस टॉपिक के गहराई में जाने की इच्छा को जागृत कर दिया था. ही वॉन्टेड टू fully know about the concept of flight. He wanted to have full and enhanced understanding of the concept of flight. At that time, I did not realize that eventually I would move towards the study of the science of flying. उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि आगे जाके वो साइंस ऑफ फ्लाइंग ही पढ़ेंगे. उन्होंने डिसाइड तो किया, लेकिन वो उनके लिए एक जुनून बन जाएगा, एक उनका उद्देश्य बन जाएगा लाइफ का, ये उनको पता नहीं था. उन्होंने उस वक्त ये डिसाइड किया था कि हाँ, मुझे कंसेप्ट ऑफ फ्लाइट के बारे में सब कुछ जानना है. लेकिन ये धीरे धीरे उनकी जो इच्छा है वो और प्रबल होती गई और उन्होंने साइंस ऑफ फ्लाइंग पूरा पढ़ा. इट वॉज माई टीचर्स लेसन एंड द फ्लाइट I had witnessed which inspired me.
और ये किस दैट इंस्पायर्ड मी टू मूव टूवर्ड्स दिस गोल। ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि उनके टीचर की लेसन की वजह से, और जो फ्लाइट उन्होंने बर्ड्स फ्लाइट जो उन्होंने सीशोर, रामेश्वरम के सीशोर पे उस वक्त देखा था, इस वजह से उनको इसको अपना फ्यूचर गोल बनाने की प्रेरणा मिली थी, और इस संदर्भ में, इस दिशा में वो आगे भी बढ़े। Then one evening after class, I asked Mr. Iyer for advice. फिर एक शाम वो मिस्टर अय्यर के पास पहुंच गए। उन्होंने I told him of my interest in further studying the science of flight. और उन्होंने मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उनसे ये अपनी इंटरेस्ट के बारे में बताया कि मैं इस कंसेप्ट ऑफ फ्लाइट के बारे में आगे भी पढ़ना चाहता हूँ। तो he patiently explained that I should complete class 8, go to high school, and from there to college and take up the study of sciences. This advice and the lesson of flight of birds really gave me my mission for life. और फिर उन्होंने सब कुछ पेशेंटली सुना, बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, और फिर उन्होंने धैर्यपूर्वक उससे उनको एक्सप्लेन किया। श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने धैर्यपूर्वक उन्हें समझाया APJ अब्दुल कलाम को कि पहले आप बेटा क्लास 8 कंप्लीट कर लो, उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करो, और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद स्टडी ऑफ आप साइंस लेकर पढ़ो, और साइंस लेकर ही फिर आगे बढ़ो। और इसके बाद अगर तुम्हें, मुझे तो बहुत ज़्यादा इस फील्ड में, इस कंसेप्ट ऑफ फ्लाइट के बारे में यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया है आपके बुक में। उन्होंने बोला कि मुझे जितना हद तक मालूम था मैंने आपको बता दिया, मैंने बहुत गहराई में इसकी स्टडी नहीं की है। अगर आप इसकी गहराई में स्टडी करो तो मुझे बहुत खुशी होगी, और आप एरोनॉटिक्स लेके पढ़ो, एरोनॉटिक्स साइंस पढ़ो, और तब आपको जब इस कंसेप्ट ऑफ फ्लाइट के बारे में सब कुछ की एकदम गहराई से जानकारी हो जाएगी तो आप आके मुझे भी बताना। और इस एडवाइस और इस टीचर के साथ जो ये मेरा ये जो APJ अब्दुल कलाम का कम्युनिकेशन हुआ, और उन्होंने काफ़ी धैर्यपूर्वक अपने स्टूडेंट की बात सुनी और धैर्यपूर्वक उन्हें समझाया, ये एडवाइस उनको भा गया, और उनको आगे इस ये जो लेसन था, जो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स उन्होंने पढ़ाया था, इनको APJ अब्दुल कलाम को उससे उनका मिशन मिल गया, उनके लाइफ का मिशन मिल गया। उन्होंने सोच लिया कि मेरे लाइफ का क्या गोल होगा, या मेरे लाइफ का क्या एम होगा, मेरा एम्बिशन क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, टिल हेयर ओनली टुडे we'll end our lesson over here. Read this chapter till where I have read, and if you have any doubts or queries, you can post me in the comment box. You can write to me in the comment box, and on the next day when we read the remaining part, I will also give a quick recap of the lesson taught till now, so that you will be more clear. And I have tried to explain you also in Hindi in this lesson, because many of you complained that you could not understand because I was using only English. But I have an advice, I have a suggestion to tell you that now you are in standard 6. You should be well versed in English. You should try to speak in English. You should try to understand in English, so that by the time you go to standard 7 or 8, you will be fluent in your English. Okay, so bye children, and be safe and secure at your home, and take a good care of yourself. Okay, bye.